नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:30 से 7:45 तक। पूर्वोत्तर के लोगों के साथ नस्लवादी भेदभाव और मारपीट का मामला सामने आया है। वारदात गुड़गांव के सिकंदरपुर इलाके की है। बुधवार रात स्थानीय लोगों के एक समूह ने नागालैंड के 2 युवकों की बैट और हॉकी स्टिक से बुरी तरह पिटाई की। बताया जा रहा है कि पीड़ित अवांग नेमई और अल्तो चिसी बुधवार रात बीपीओ से काम करके लौट रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने दोनों को घेर लिया। फिर हमलावर इन्हें सब्जी मार्केट स्थित कमरे में ले गए और जहां उन्हें जबरन शराब पिलाने का दबाव बनाया। लेकिन जब दोनों लड़कों ने इसका विरोध किया तो हमलावरों ने इनकी जमकर पिटाई की। हमलावर यही नहीं रुके, इन्होंने दोनों पीड़ितों के बाल भी काट दिए। पीड़ितों ने बताया है कि हमलावर बार बार ये कह रहे थे कि वह पूर्वोत्तर के लोगों को कड़ा संदेश देना चाहते हैं। पिटाई के बाद हमलावरों ने पीड़ितों को सड़क किनारे फेंक दिया। इस मामले में गृह मंत्रालय ने बुधवार को आरोपियों को पकड़ने की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में हरियाणा सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा सरकार को भेजे संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए और इस घटना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट को जल्द से जल्द भेजना चाहिए। वहीं नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट सेंटर के प्रवक्ता अन्ना ने कहा कि गुड़गांव में पहले भी ऐसे मामले देखने को मिले हैं, लेकिन उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। अलाना ने एंटी नस्लवादी कानून को कड़ा बनाने की मांग की है, जिस पर सरकार की ओर से नॉर्थ ईस्ट के छात्रों की मदद के लिए बनाए गए सेल की सदस्य लिंडा न्यूमैन ने भी अलाना की बात पर सहमति जताई है। वहीं दिल्ली में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नोडल ऑफिसर ने एक कार्यक्रम के दौरान इस घटना पर कहा कि गृह मंत्रालय इस घटना पर काम कर रही है। Last night, one of my friend, he came to my room and both of us are staying together. And he told to me that he's going to his room, okay. And when he went there, went down. After that my young people, they're starting to beat him, and he's calling me. And I try to help. Sorry, Alotochi. You just continue. Yeah, you just continue. Don't listen. Okay, so I try to help my friend, okay, but I can't help to my friend, and starting again they try to beat us, and that my people they catch us, and after that they are inside the room. They take that iron and that cricket bat and that hockey's this and all. They have maybe more than 10 above. Yeah, they cut our hair and they're starting beat us with belt and this and all now. They shaved your hair as well? Yeah. Did they They also shaved it? fought? Could it be short? Yeah, I can show. See. Oh God. They initially cut with seizure and then later on they used the blade and then they shave off almost all the parts in the head. Did we all? Since the past many years, I have experienced this. It has been happening, but not even a single exemplary action has not been done. If you go to all the police stations, they will keep on saying that this is not a racist attack. Even if when they have used the words called you people from the northeast, you are from Manipur, and even this recent case they said they're going to tell after they chop off their hair, after they were beaten badly, after they spared and said that since you are from Nagaland, then that's why we did not kill you. But then you go and tell all the Manipuris that that they should leave Sikandarpur area. So is this not a racist attack? It is not a racial slur. And then if they did not arrest the accused, now we are waiting and hoping that they arrest the accused as soon as possible. Again, if this is not done, for example, if they are put under kidnapping, for example, attempt to murder, then SC/ST Atrocities Act, which means they cannot get bail. Accused should not get bail. But the thing is, in the past, okay, no matter what kind of sections you put, they always get the bail. Anti-racial law, yes, it is one of the things that we have been fighting for. I know it is going to be very, very difficult. This is one of the challenges because even the whole population, let us say, and the concerned, the responsible person don't really want to admit that this racism doesn't exist in this country. So where do we go? But only when they accept. And then when do we have this law? The moment you start calling people names, or the moment you start because of your facial distinct features, then only we will be able to get justice. Hopefully have a great expectation. This time things will change, and I hope the government will help in every way for our Northeast people to have a secure life. Though we feel, yes, anti-racial law should be there because
this scheduled tribe, this thing, this thing doesn't cover up the whole thing for, especially for North East people. कल जो भी हुआ है, चाहे बेंगलोर हो या गुड़गांव में, ऑलरेडी इवन MOS ने भी वहाँ उस ऑफिस से भी मुझे बात हुआ ऑलरेडी, उसका DGP को या अपना उस कमिश्नर CP को ऑलरेडी MHA से भी ऑलरेडी डायरेक्शन गया हुआ है कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, और इवन टू द कर्नाटका DG को भी ऑलरेडी फ्रॉम हाईएस्ट लेवल साइड से ऑलरेडी गया हुआ है। सो पुलिस एक्शन इज ऑन द जॉब। दिल्ली में जो हो सकता है इसमें हम कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो भी हो है हम इन्फॉर्म कर देते हैं, और बाकी में जो दिल्ली के बाहर है आई थिंक ऑलरेडी MHA को मालूम, दे आर डूइंग द जॉब। The lax-sidle attitude of the authorities, coupled with the racist mindset of the locals in Gurgaon, is definitely fueling such hate crimes. While the police still deny calling this a racist attack, the ground reality of a community being chased away from a part of one's own country definitely says otherwise. With video journalist Binay Topo, this is Prashanti reporting for Eastern Sky Media from Gurgaon. दिल्ली के INGCA के लेक्चर हॉल में गुरुवार को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2014 के आयोजन के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा किया गया था। इस अवसर पर दिल्ली में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ ईस्ट रॉबिन हिबू और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन श्याम कानू महंत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट 2014 का आयोजन नई दिल्ली के जनपद स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 7 से 10 नवंबर तक आयोजित होगा। यह महोत्सव क्षेत्र में मौजूद विभिन्न व्यावसायिक एवं निवेश संभावनाओं पर केंद्रित होगा। इसके अलावा इस महोत्सव के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों की विविधतापूर्ण संस्कृति और समृद्ध विरासत को प्रभाषित किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रॉबिन हिबू ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होने से पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति और कला के विषय में दिल्ली सहित अन्य राज्यों के लोगों को भी इसकी जानकारी मिलेगी। साथ ही उन्होंने इस तरह के कार्यक्रमों को जरूरी बताया। वहीं कार्यक्रम के चेयर श्याम कानू महंत ने कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। And unique culture. Northeast Festival. नॉर्थ ईस्ट 7 से 10 नवंबर में होगा, दिल्ली में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स में होगा। उसका सहयोग से हम लोग कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी दिल्ली, हम लोग सब मिल के इसको कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है दिल्ली को नॉर्थ ईस्ट के बारे में इन्फॉर्म करना, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर के बारे में। अब नॉन स्टॉप कार्निवल होगा, इसमें नॉर्थ ईस्ट का डांस फॉर्म्स आएगा, सभी म्यूजिशियंस आएगा, 23 म्यूजिशियंस इसमें आएगा, जो जुबिन गर्ग आएगा, टेचू सिस्टर, इम्फॉल टॉकीज, रूबेन मसांग, बॉलीवुड का जो एस किंग वो लोग आएगा, वो लोग परफॉर्म करेगा। डांस परफॉर्मेंस होगा, नागा मणिपुरी डांस, फूड फॉर्म्स होगा, 8 स्टेट का पूरा टॉप फूड चेंज है हमें दिखाएगा। तो हम लोग प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है और बातचीत चल रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट होगा। 7 तारीख 4 बजे प्राइम मिनिस्टर को हम लोग इनवाइट किया है। ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इनागुरेट हम प्राइम मिनिस्टर के थ्रू करना कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग का बातचीत हो रहा है, हम लोग होपफुल है वो आएगा। स्मृति ईरानी मैडम आएगा, वो कंफर्म किया है वो आएगा। टूरिज्म मिनिस्टर आएगा। हाँ, यहाँ पे जो खास करके नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में सारे 7 सिस्टर्स जितने भी वो रेस्पेक्टिव यूनियन का जो लीडर है, सारे इन्वॉल्वमेंट है। कल्चर भी हम कल्चर प्रोग्राम्स हम करने जा रहे हैं और हमें अरुणाचल को दिया गया है 3 दिन का प्रोग्राम, तो उसमें हम सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं और अवेयरनेस कैंपेन के साथ भी। जी, पिछले साल भी हमारा जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है सक्सेसफुल था, बट पिछले साल हम जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जहाँ के जो दिल्ली हाई से हम ज़्यादा ले आ ही नहीं पाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहें कि वो फेस्टिवल वे में सेलिब्रेट किया गया था। तो इस बार हमने सोचा कि क्यों नहीं कि जितने भी जहाँ भी हमारे लोग रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो इस कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स को हटाने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ के स्कूल के बच्चे, यहाँ के जो लोकल्स रहते हैं, हम उनको चाहते हैं कि इस फेस्टिवल में आए और देखिए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा खान पान कैसा है, हमारा ड्रेस कैसा है, हमारा म्यूजिक कैसा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर वो जानेंगे तो तब वो कुछ आई थिंक इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को हुए कानूबाड़ी विधानसभा उपचुनाव में भारी मतदान हुआ। राज्य के चुनाव अधिकारी ने बताया कि कानूबाड़ी विधानसभा उपचुनाव में करीब 90% मतदान दर्ज किया गया है, जो काफी सकारात्मक है। उपचुनाव के नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। आपको बता दें कि कानूबाड़ी उपचुनाव के लिए 28 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां बुधवार को सुबह से ही वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिली। उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जोर शोर से प्रचार किए थे। उपचुनाव में कांग्रेस के गावरिल देनबाग बांगसु और बीजेपी से रोनगाई महाम आमने सामने हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीनों में बंद हो गई और अब आने वाले 19 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा कि बाजी किस पार्टी के हाथ लगी।
अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर निगम के वार्ड नंबर 15 के पार्षद ताकियो मोहन ने शिक्षा मंत्री तापांग तालो को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपील की है कि ईटानगर माध्यमिक विद्यालय के गणित और विज्ञान के शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी जाए। उन्होंने कहा है कि तबादले की वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही पार्षद ताकियो ने पत्र में यह भी जानकारी दी है कि स्कूल में कुल 29 शिक्षक हैं, जिनमें से 11 शिक्षक अवकाश पर हैं। ऐसी स्थिति में अगर शिक्षकों का तबादला किया जाता है तो छात्रों की पढ़ाई बाधित होगी। वहीं उन्होंने यह अपील भी की है कि स्कूल की इमारत का भी पुनर्निर्माण जल्द से जल्द हो। यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग, मास ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हमारे यहाँ से कुछ टीचर को ट्रांसफ़र हुआ। कुछ टीचर जो ट्रांसफ़र हुआ उनमें से स्पेशली मैथ और साइंस का टीचर्स है। तो ऑब्वियसली मेरे यहाँ स्कूल में 29 टीचर्स है। आउट ऑफ 29 टीचर्स में से 11 टीचर्स जो है कुछ लोग EL में हैं, कुछ लोग CCL में हैं, कुछ लोग मैटरनिटी लीव में हैं, कुछ लोग लाइक ये मतलब ऑन प्रोसेस में है, ट्रांसफ़र प्रोसेस में है। इसलिए हम लोग यहाँ टीचर का शॉर्टेज तो है। साथ ही सबसे पहले मेन मुद्दा में ये देखना कहूँगा कि हमारा मैथ्स और साइंस का टीचर को ट्रांसफ़र नहीं कर देने से ठीक है। स्पेशली जो मेरा 2 टीचर्स है मैथ्स और साइंस का है, तो इसलिए इसको ट्रांसफ़र नहीं करने से मैं हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट से, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट से यही अनुरोध है कि आप हमारे यहाँ का मैथ्स और साइंस टीचर को ट्रांसफ़र ना करें। अगर क्या भी तो है तो उसका रिप्लेस पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट का टीचर यहाँ पर रिप्लेस कर देने से बहुत हमारा स्कूल अच्छा रहेगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हुआ मेरा इस सी सेक्टर मिडिल स्कूल से इफेक्ट बहुत पड़ेगा ये, क्योंकि अभी मिड एकेडमिक सेशन है। वही टीचर जो है हमारा मैथमेटिक्स और ये साइंस सब्जेक्ट को दोनों आगे लेके जाता है। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हमारा DDSE से, हमारा मंत्री साहब से मेरा यही रिक्वेस्ट विनती है कि ये जो ट्रांसफ़र जो निकला है मेरा, जो स्पेशली सी सेक्टर मिडिल स्कूल से, इसको काइंडली आप लोग थोड़ा रोक देने से ठीक है। मणिपुर में KCP, KYKL, त्रिपाक प्रो, RPF और UNLF की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 15 अक्टूबर को इम्फाल में 18 घंटे का बंद बुलाया। ये बंद मणिपुर विलय दिवस के विरोध में किया गया था, जिसका खासा असर देखने को मिला। बंद से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। बाजार, दुकानें, गैर सरकारी संस्थान और शिक्षा संस्थान सभी बंद रहे। यातायात परिवहन पूरी तरह ठप हो गया, जिसके चलते लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खासतौर पर मजदूर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जिनका रोजी रोटी रोज के कामों से चलता है। आपको बता दें कि 29 सितंबर 1949 को मणिपुर के महाराजा बोधचंद्रा ने मणिपुर के विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर को भारत का हिस्सा घोषित कर दिया गया था। इसके बाद से ही मणिपुर में 15 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में एक तबके के द्वारा मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में छात्र हागे हासांग की हत्या और नाबालिग से रेप मामले में जीरो पुलिस ने मंगलवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लोअर सुबनसिरी के SP तुम्हे आमो ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की उम्र 19 साल है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जीरो के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्र हागे हासांग की हत्या कर दी गई थी और नाबालिग छात्रा के साथ रेप किया गया था। पुलिस ने बताया कि पीड़िता द्वारा दी गई सूचना और CCTV फुटेज की सहायता से आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका। SP तुम्हे आमो ने जांच में सहयोग के लिए गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय लोगों और आपातानी यूथ एसोसिएशन का धन्यवाद दिया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की स्टार पार्टी ने गुरुवार को IMW के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का 19 अक्टूबर को चुनाव होना है और चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर थी और नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सिर्फ स्टार पार्टी ने ही नामांकन भरा, जबकि बाकी 2 पार्टियां अपने उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल नहीं कर सकी। इसके चलते स्टार पार्टी ये मांग कर रही है अब कि उसे निर्विरोध घोषित कर दिया जाए। स्टार पार्टी के उम्मीदवार डाडो ताजुक का कहना है कि ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्हें निर्विरोध घोषित करें। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर निगम के वार्ड नंबर 15 के पार्षद ताकियो मोहन ने व्यापारियों से यह अपील की है कि वो 19 अक्टूबर को ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के होने वाले चुनावों का बहिष्कार करें। पार्षद ताकियो मोहन ने यह बताया कि उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग, जिला प्रशासन और ईटानगर म्युनिसिपल काउंसिल से चुनाव को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कैपिटल डिप्टी कमिश्नर ने मांग को खारिज करते हुए चुनाव कराने के आदेश दिए थे।
मतलब ये आइमा का बारे में बात करने से एक्चुअली आइमा इलेक्शन या आइमा इलेक्शन जो नहीं होने बल्कि हम लोगों ने बहुत कोशिश किया। जितना काउंसिलर से म्यूनिसिपल काउंसिलर, हमारा चीफ काउंसिलर, CMO और इवन हमारा ये होम मिनिस्टर तक भी, DC तक भी हम डिस्कस किया। तब भी ये चीज़ जो मतलब पता नहीं फिर दोबारा किस लिए हो रहा है। और हम लोग आइमा मतलब इलेक्शन होना है बोल के हम लोग किसी को इनकरेज नहीं किया। और ये नहीं कि मतलब आइमा नहीं होना है। आइमा एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इलेक्शन होना है बोलकर और मतलब वो होना ही बोलकर आइमा होना ही बोलकर ज़रूरी भी नहीं। हाँ, जब म्यूनिसिपल नहीं था तब शायद चलता था। अरुणाचल प्रदेश के हपोली ग्राउंड में पेडी लाइलांग मेमोरियल स्कूल में अपने 25 साल पूरे होने पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्यमंत्री नाबम तुकी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने पायनियर को रिलीज किया। वहीं तुकी ने स्कूल प्रशासन की जमकर तारीफ की और बाहर से आए हुए टीचर्स का भी धन्यवाद दिया। साथ ही CM ने घाटी के सभी स्कूलों के प्रशासन से अपील की है कि वो सुरक्षित स्थानों पर स्कूल का निर्माण करें ताकि छात्रों को प्राकृतिक आपदा के प्रभाव से बचाया जा सके। साथ ही तुकी ने कहा है कि बच्चों के लिए स्कूलों में आपदा प्रबंधन के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जाए ताकि उन्हें आपदा से निपटने के लिए जागरूक किया जा सके। CM के अलावा कार्यक्रम में बावांग फेलिक्स, लिखा साया और जीरो के DC भी उपस्थित थे। श्री गणेश देव, 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 श्री गणेश देव। जो राशि चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। The school has completed 25 years and it has contributed lot of human resource development services in last 25 years. In the district headquarters, Zero, particularly Lower Subansiri district and state as a whole, and this has contributing the development of education in the state. I must thank all of them, particularly the teachers who are serving here, the principal who is coming all the way from south and staying here at Zero, the low altitude area to a high altitude area in the country to serve our society. It has contributed a lot, and I can commend it as a Yemen services to this state. The school is properly managed. At least minimum the norms are followed. The Right to Education Act is adhered to. आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।